Hello everyone, a very good morning to all of you. This is Sajid Khoth and I welcome you all to my channel Creative Tutorials with a very big heart. Dear children, today we are on practice set 13.1, okay, of our chapter number 13 given on page number 85 of our textbook. And the question goes something like this. In each pair of triangles in the following figures, parts bearing identical marks are congruent. State the test and correspondence of vertices by which triangles in each pair are congruent. Okay, let us read the question one more time. In each pair of triangles in the following figures, these are figures you can see right now, 1, 2, 3, 4 and so on. Parts bearing identical marks are congruent. So what is this? Parts bearing identical marks are congruent. So see in question number 1, that is sub question 1, you can see that these two are identical marks. So it means that these two sides are congruent. Then here you can see these two are identical marks and they are made for the angles. That means these two angles are congruent. Okay, and so on. In this image you can see in sub question 2, these two are identical marks. Then that means these two sides are congruent. Then these two are identical marks. That means these two angles are congruent. And in this way, they have given you certain identical marks in each of the sub-questions. Alright, and they are asking us that state the test and correspondence of vertices by which triangles in each pair are congruent. So by which tests they are congruent. So we had done many tests right now. We had done 5 tests, okay. If you remember, we have already studied 5 tests, okay, in our previous videos, like hypotenuse side test or angle side or side angle test, then side test and so on, okay. So out of those 5 tests, we have to see that which test, okay, goes along with each of the figure by which we can show that these two triangles are congruent, or these two triangles and so on, okay. And next question is, second part is correspondence of vertices also by which triangles in each pair are congruent. Alright, so let us focus on sub question 1 first. Okay, dear children, now you can see that I have drawn sub question 1 over here. Okay, the figure given in sub question 1 for you. There we can see that we have two triangles. First triangle is WXZ, the other one is WYZ. Okay, and in this figure we have to state the test, okay, and the correspondence both, okay, of vertices by which these triangles are congruent. All right, so you can see that suppose if I follow this path, if I go this way for example, all right, and suppose if I follow this path for this triangle, just imagine, okay, ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं है इसमें ऐसा कुछ, but suppose अगर मैंने ये अगर फॉलो कर लिया तो कैसा होगा देखो. If I follow this path or this route, okay, so you can see that one is side over here, the other one is angle over here, and this WZ, what you can see, is also one side of this triangle. Okay, and these two triangles and these two identical marks shows that WX and WY, okay, these two are congruent, correct na? So I can see that segment WX and segment WY are congruent. Okay, so अगर मैंने ऐसा लिख दिया that segment WX is congruent to segment WY, that means एक सेट हमको साइड का मिल गया, राइट. अब दूसरा हमारा ये एंगल है, दिख रहा है, ये दो एंगल्स हमको आइडेंटिकल मार्क्स के दिए हुए हैं. ओके, सो इफ आई राइट दैट एंगल XWZ is congruent to angle YWZ. So we got one angle also. तो यहाँ मैं S लिख देता हूँ आपके समझ में आने के लिए आसानी से. ओके, एक S साइड हमको मिल गया है, एक एंगल हमको मिल गया है, करेक्ट. अब ये बचता है हमारा ये वाला, सो WZ. ओके, सो आई कैन राइट दैट सेगमेंट WZ is congruent to segment WZ. okay, तो एक और साइड हो गया. why? because WZ is common side for both the triangles, right? so देखो हमको SAS टेस्ट हमको मिल रहा है. okay, so we can write that these two triangles are congruent. so I can write that the triangles are congruent by SAS test. okay, okay, and आगे ये भी पूछ रहा है हमको कि under what correspondence. so I can write that under the correspondence what. Now you see I have taken this path you can see in blue with this arrow mark right now to make you understand. So that means I am starting basically with my vertex X first, right?
सो इफ आई एम स्टार्टिंग विद द वर्टेक्स एक्स फर्स्ट, ऑलराइट, अब यहाँ पे एक तो साइन ये आने वाला है 1 to 1 करस्पॉन्डेंस का, तो उस हिसाब से मेरा ये पहला वर्टेक्स बन रहा है इस ट्राइंगल के लिए, बराबर, तो ये मेरा इधर y आ जाएगा, ऑलराइट। अब इसके बाद मैं ऊपर जा रहा हूं फ्रॉम ईयर टू ईयर, सो x से मैं w की तरफ जा रहा हूं, तो इसका मतलब यहां अगर मेरा w अगर वर्टेक्स अगर आ रहा है तो यहां से मैं ऊपर इस तरफ जा रहा हूं, तो इधर भी w ही आने वाला है, तो सबको दिख रहा है कि w और z ये दो ऐसे वर्टाइसेस है जो दोनों ट्राइंगल्स के लिए कॉमन है, करेक्ट। सो अब क्या बचा, यहां से मैं नीचे की तरफ आ रहा हूं, तो नीचे की तरफ z आ रहा है, तो ये z आ जाएगा, इसका भी नीचे आ रहा है तो ये भी z आ जाएगा, राइट। तो ये है हमारा 1 to 1 करस्पॉन्डेंस आ रहा है। सो अंडर दिस 1 to 1 करस्पॉन्डेंस, okay, of vertices, these two triangles, okay, they become congruent. So congruent बन रहा है हमारा ये टेस्ट से, तो साइड क्या हो गया हमारा, टेस्ट कौन सा हो गया, SAS टेस्ट हो गया हमारा, ओके, ये SAS टेस्ट से हमारे ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, और ये हमारा 1 to 1 करस्पॉन्डेंस है ऑफ वर्टाइसेस बाय विच दीज ट्राइंगल्स आर ट्राइंगल्स इन ईच पेयर आर कॉन्ग्रुएंट, ओके। तो ये हमारा बन गया सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन का, फर्स्ट सब क्वेश्चन का। ऑलराइट, नाउ लेट अस गो टू सब क्वेश्चन 2। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सब क्वेश्चन 2 जो है, ऑलराइट, ये सब क्वेश्चन 1 का मैं यहां ऐसे लिख देता हूं नंबर 1, या सब क्वेश्चन 2 का नंबर डाल दिया, ऑलराइट। नाउ इन दिस सब क्वेश्चन 2, ओके, दिस फिगर वी क्लियरली सी दैट, ओके, वी हैव टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, है ना। एक तो देखो ये एंगल 90 डिग्री का साइन दिख रहा है हमको, ओके, इसका मतलब ये दोनों आइडेंटिकल मार्क है, तो ईच एंगल इज 90 डिग्री, and you can see these two are identical marks, that means these two hypotenuses are congruent, okay। so KJI और LJI ये दो ट्राइंगल्स मेरे सामने है, ओके। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका साइड करस्पॉन्डेंस, इसका साइड कौन कौन से कॉन्ग्रुएंट है जिससे हमारा ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट बन जाएगा। हमने पहले ही पढ़ा था इन प्रीवियस वीडियो दैट व्हेनेवर वी हैव राइट एंगल ट्राइंगल्स आवर हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट पक्का आने वाला है उधर, करेक्ट ना। अभी आप दिख रहा है आपको इन दीज टू ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल KJI एंड ट्राइंगल LJI, इन दीज टू ट्राइंगल्स, ओके, हाइपोटेन्यूज KI इज कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेन्यूज LI, बराबर है। तो मैं लिख सकता हूं दैट हाइपोटेन्यूज KI इज कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेन्यूज LI, बराबर। एक तो हमको ये मिल गया है हमको, राइट। अभी आपको दिख रहा होगा ये JI या IJ बोल लो, ओके, ये साइड जो है दोनों ट्राइंगल्स के लिए कॉमन है, करेक्ट। सो आई कैन राइट दैट साइड JI इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड JI, राइट ना, फॉर बोथ द ट्राइंगल्स इट इज कॉमन साइड, दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज और साइड हमारा कॉन्ग्रुएंट आ गया है, हमारा दो पैर हमको मिल गए, एक पैर इसका मिल गया हाइपोटेन्यूज क्या, एक इसका मिल गया, बराबर। तो क्या मिल गया, एक हमको हाइपोटेन्यूज वाला मिल गया है और एक हमको साइड का पैर मिल गया है हमको, राइट। और ये दो जो 90 डिग्री है हमको दिखाई रहा है दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर राइट एंगल ट्राइंगल, करेक्ट ना। सो हाइपोटेन्यूज और साइड आ गया हमारा, सो देयरफॉर बाय हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट, ओके, by hypotenuse side test triangle KJI is congruent to triangle LJI, okay। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया। सेकेंड पार्ट हमको बोल रहा है कि 1 to 1 करस्पॉन्डेंस बताइए हमको, ऑलराइट। सपोज चलो मान के चलते हैं कि मैं ये पाथ फॉलो कर रहा हूं, ऑलराइट, तो यहां पर ये पाथ ऐसा हो जाएगा फॉर दिस ट्राइंगल, बराबर ना, बिकॉज अगर ये लाइन जो आपको दिख रही है JI साइड जो है, फॉर एग्जाम्पल चलो आपको समझ में आने के लिए मैं यहाँ पे एक डॉट डॉट लाइन बनाता हूं, ऑलराइट, और मान के चलते हैं कि इस पॉइंट पे हमने इसको फोल्ड कर दिया, हमने, ओके, इस फिगर को हमने फोल्ड कर दिया इस लाइन के ऊपर, तो क्या होने वाला है, ये L का जो वर्टेक्स है वो K पर आ जाएगा, बराबर। J का वर्टेक्स कहीं जाने वाला नहीं है, वहीं पर रहेगा, I वर्टेक्स भी कहीं जाने वाला नहीं है, वहीं पर रहेगा, बराबर। तो इसका मतलब अगर हम ये अगर पाथ फॉलो कर रहे हैं तो कैसा माना हो जाएगा, तो देखो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं K से, तो फॉर दिस ट्राइंगल, है ना, फॉर दिस ट्राइंगल तो हम क्या लिखेंगे, एक तो वैसा आएगा, ओके, एंड यू कैन राइट दैट अंडर द करस्पॉन्डेंस दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट अंडर द करस्पॉन्डेंस, ओके। करस्पॉन्डेंस क्या है हमारा, स्टार्टिंग फ्रॉम वर्टेक्स K, तो एक K आ गया, तो यहां तो एक साइन आने वाला है 1 to 1 करस्पॉन्डेंस का, राइट। K के साथ में हमारा L आने वाला है, बराबर, बिकॉज हमने ये पाथ चूज किया हुआ है। देन K के बाद हम नेक्स्ट वर्टेक्स J पर आ रहे हैं, तो यहां पर J आ जाएगा, बराबर। उसी हिसाब से L के बाद इस ट्राइंगल के लिए हमारा नेक्स्ट वर्टेक्स J है वापस से, तो इधर भी J आ जाएगा।
फिर यहाँ पर हमारा एरो इस तरफ जा रहा है तो हम आई की तरफ जा रहे हैं, तो I will get my vertex I. Similarly here also after my vertex J my arrow is going towards vertex I, तो इसका भी I आ जाएगा. ओके तो ये 1-to-1 correspondence कौन सा है इसका, KJI in 1-to-1 correspondence with LJI. ऑलराइट, और हमारा टेस्ट कौन सा है, हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट. ऑलराइट, तो इससे हमने ये प्रूव कर दिया है अभी कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन 2, इसके ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट. तो इससे हमने ये प्रूव कर दिया है कि ये दो ट्राइंगल्स जो हमारे दिख रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल्स, वो कॉन्ग्रुएंट है बाय हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट एंड अंडर दिस करस्पॉन्डेंस. ओके ऑलराइट, अभी सब क्वेश्चन 3 का फिगर हमारे सामने रेडी है. ओके हमको यहाँ दिख रहा है एक रोम्बस बनाया हुआ है, एक क्वाड्रिलैटरल है. ओके इसको हम रोम्बस बोल रहे हैं. ऑलराइट, और इसके ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट दिख रहे हैं हमको. वी नो दैट इसकी प्रॉपर्टी है बेसिकली रोम्बस की. ओके और हमने ये भी देखा है यहाँ पर इस फिगर के अंदर कि ये दो जो है आइडेंटिकल मार्क्स है, दैट मीन्स एच जी और एफ ई ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है. उसी तरह एच ई और एफ जी ये दोनों के लिए ये आइडेंटिकल मार्क्स दिया हुआ है, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट है. इसका मतलब दो पेयर जो है साइड्स के हमको दिख रहे हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट है ऑलरेडी, बराबर ना. तो चलो पहले वो लिखना शुरू करते हैं. लेट्स राइट दैट सेगमेंट एच जी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट एफ ई. ओके एफ ई ऑलराइट, ये एच जी और ये एफ ई ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है. इसका मतलब मुझे एक साइड मिल गया है, दूसरा मेरे को दिया है एच ई, तो सेगमेंट एच ई ये वाला, ओके ये वाला इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट एफ जी. करेक्ट, ये दोनों भी आइडेंटिकल मार्क है, तो इसका भी एक साइड हमको मिल गया है. एंड नाउ इफ यू सी केयरफुली फॉर दिस बोथ द ट्राइंगल्स, करेक्ट ना, ये जो डायगोनल बीच का जो आया है ई जी या जी ई बोल लो, इस डायगोनल ने इस पूरे क्वाड्रिलैटरल को या रोम्बस को दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया है. करेक्ट, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये दोनों के लिए कॉमन साइड है. राइट, सो आई कैन राइट दैट सेगमेंट जी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट जी ई. करेक्ट, तो ये भी एक साइड ही है. ओके तो इसका मतलब क्या हो गया, हमको ये दो ट्रायंगल्स के अंदर साइड 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 हमको तीन साइड्स मिल रहे हैं, ऐसे पेयर्स मिल रहे हैं, हमको तीन पेयर्स मिल रहे हैं साइड के, जिससे हमको ये दिख रहा है कि हमारे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है. करेक्ट ना, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाय साइड साइड साइड, ओके these triangles are congruent. ओके या फिर उल्टा भी लिख सकते हो कि these triangles are congruent by SSS test. ओके सो by SSS test, सॉरी मैं लिखना भूल गया. ऑलराइट, तो ये आपका हो गया. अब बाकी क्या होता है हमारा 1-to-1 करस्पॉन्डेंस. चलो मान के चलते हैं कि 1-to-1 करस्पॉन्डेंस के लिए मैंने ये पाथ जो है फॉलो किया, यहां से लेके ऐसा वाला, ठीक है, और यहां पे जो है यहां पर मैं ये पाथ फॉलो करता हूं. ऑलराइट, तो अभी अगर ये पाथ मैं फॉलो कर रहा हूं, सो आई विल राइट अंडर द करस्पॉन्डेंस व्हाट, एक तो यहां पे तो हमारा साइन आने वाली है 1-to-1 करस्पॉन्डेंस की. तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं विद वर्टेक्स एच. करेक्ट ना, तो चलो यहां एच डाल देते हैं, तो यहां मेरा एच आ गया. करेक्ट, यहां पर मैंने शुरुआत यहां से की है, तो मेरा वर्टेक्स एफ है यहां पर, तो यहां पर एफ आ जाएगा मेरा, बराबर. अब एच के बाद आई एम कमिंग टू वर्टेक्स ई, तो यहां पे मेरा क्या आने वाला है, वर्टेक्स ई, बराबर. इसके बाद अब मैं एफ के बाद इस ट्राइंगल के लिए मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं, सो मेरा वर्टेक्स जी यहां पे बैठा हुआ है. करेक्ट, सो मेरा वर्टेक्स जी यहां पे आ जाएगा. अब आफ्टर वर्टेक्स ई आई एम गोइंग टू वर्टेक्स जी. यू सी दिस एरो मार्क, राइट, सो आई एम गोइंग टू राइट जी ओवर हियर. And for this triangle, my arrow is coming down, okay, downwards. So after G, I am going to come towards a vertex E. So I will get here vertex E. Okay, so that means under the correspondence HEG in 1-to-1 correspondence with FGE, these two triangles become congruent. Okay, तो पहली बात तो congruent हो रहा है by SS test, okay, और under this 1-to-1 correspondence. All right, तो बहुत सिंपल है ना. चल ठीक है, अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स सब क्वेश्चन 4. चलो बच्चों, अभी अपने सामने सब क्वेश्चन 4 का फिगर है. चलो अब इसको पकड़ के धोते हैं बराबर से. लेट्स सी, यहां पर हमारे पास दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं हमको. एक ट्राइंगल है SMA, एक ट्राइंगल है
ओ पी टी। ओके, ये दो ट्राइंगल्स हमारे साथ में हैं। अब देखो ये तीन ट्राइंगल, इन तीन क्वेश्चंस के अंदर हम देखेंगे ट्राइंगल्स हमारे ज्वाइंट किए हुए थे, बराबर ना। और इस सब क्वेश्चन 4 में से क्या किया है, ट्राइंगल्स को अलग अलग कर दिया है, बराबर। अब देखते हैं कि जब ट्राइंगल्स अलग अलग होते हैं तब भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। कैसे कर सकते हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, देखो एक आपको ये साइन और ये साइन दिख रहा है जो आइडेंटिकल है, फिर ये और ये साइन आइडेंटिकल है, और ये आइडेंटिकल है, बराबर ना। चलो तो उसके हिसाब से हम शुरू करते हैं। अगर मैं लिखूं दैट एंगल एम एस ए, ओके, अगर मैं एंगल एम एस ए लिखूं या ए एस एम लिखूं तो मैं आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। ओके, चलो एम एस ए, ट्राइंगल एम एस ए इज कॉन्ग्रुएंट टू, अभी यहां से शुरू किया है मैंने, बराबर। अब ये और ये दोनों आइडेंटिकल है, बराबर ना, तो इसका क्या आ जाएगा, POT इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल POT, बराबर कि नहीं। तो बीच में कौन सा आया है, हमारा साइड आया है, देखो बीच में जो है हमारा साइड आया हुआ है S, सॉरी साइड नहीं, वर्टेक्स S आया हुआ है जहां पे हमको दिया हुआ है। इधर भी हमारा बीच में क्या है, O आया हुआ है, जहां देखो ये हमको ये साइन दिया हुआ है। तो S और O ये दो ऐसे वर्टाइसेस हैं जिनके आइडेंटिकल मार्क्स है, बराबर। तो ये हमारा एक आ गया, तो हमको ये क्या मिल गया, हमको यहां पर एक एंगल मिल गया है हमको, बराबर ना, एक एंगल का पैर हमको कॉन्ग्रुएंट मिल गया है। उसके बाद हम अगर इस तरफ चलेंगे तो हमको SM मिल रहा है। सो आई कैन राइट दैट सेगमेंट SM, आई कैन राइट दैट सेगमेंट, तो इसके अंदर SM आ रहा है, तो आई कैन राइट दैट सेगमेंट SM इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट व्हाट, सेगमेंट SM इज कॉन्ग्रुएंट टू OP, बराबर ना। देखो ये और ये दोनों सेम सेम आइडेंटिकल मार्क्स दिख रहे हैं हमको, तो ये हमको एक साइड मिल गया है हमको, बराबर। अब तीसरा क्या दिख रहा है हमको, ये दिख रहा है। तो अगर मैं लिखूं दैट एंगल SMA, अगर मैं लिखूं एंगल SMA इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, अब कौन सा आएगा, इधर आएगा OPT, एंगल OPT। देखो अभी यहां पर आपका ये जो वर्टेक्स जो M है और ये वर्टेक्स जो P है, देखो M और P, देखो ये दोनों अपना आइडेंटिकल मार्क्स दिया हुआ है, बराबर। तो इसका मतलब हमको एक और हमको ये मिल गया है, एंगल का पेयर मिल गया है हमको, राइट ना। सो वी कैन सी दैट, अभी इस केस में हम क्या लिख सकते हैं, फिर वी कैन राइट दैट therefore the triangles are congruent, okay, by which test, बताओ बच्चों, yes, very good, angle side angle, by angle side angle, that is ASA test। ओके, अब दूसरा पार्ट भी क्वेश्चन का बाकी है हमारा, उसने पूछ रहा है कि करस्पॉन्डेंस बताइए, राइट ना। तो विल राइट अंडर द करस्पॉन्डेंस, अब करस्पॉन्डेंस के लिए ये साइन तो आने वाली है, हम सबको मालूम ही है अभी। ओके, अब चलो देखते हैं, चलो अगर मैं इस ट्राइंगल के अंदर अगर मैं ये पाथ फॉलो करूं, ऐसा जाके अगर मैं ऐसा जाऊं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या हुआ, देखो मैंने शुरुआत यहां से की है, तो इसमें यहां से शुरुआत करनी पड़ेगी मुझे, तो इसके अंदर मुझे ऐसा जाऊंगा मैं, बराबर ना। तो ये पाथ अगर हमारी अगर है तो कैसा हो जाएगा हमारा, सबसे पहला शुरुआत हो रही है वर्टेक्स S से शुरुआत हो रही है, तो मैं क्या लिखने वाला हूं यहाँ पे, मैं लिखूंगा वर्टेक्स S, इधर आ जाएगा मेरा। अभी S शुरुआत यहां से हो रही है, इस ट्राइंगल की शुरुआत हो रही है फ्रॉम वर्टेक्स O, तो यहां पे आ जाएगा O, बराबर। अब इसके बाद S के बाद हमारा लाइन नीचे की तरफ आ रही है टुवर्ड्स M, तो इस ट्राइंगल के लिए हमारा वर्टेक्स है M। उसी तरह इस ट्राइंगल के लिए O के बाद हमारी लाइन जा रही है टुवर्ड्स P, तो ये है मेरा वर्टेक्स P। फिर इस ट्राइंगल के अंदर मेरा एरो लास्ट में A पे जा रहा है, तो मेरा हो जाएगा A, और यहां पे मेरा लास्ट वर्टेक्स है T, तो मेरा आ जाएगा T, बराबर। तो मेरा 1-to-1 करस्पॉन्डेंस जो कौन सा आएगा, SMA, ओके, इन 1-to-1 करस्पॉन्डेंस विद OPT। सो दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल साइड एंगल टेस्ट, जिसको हम ASA टेस्ट भी बोलते हैं, अंडर द करस्पॉन्डेंस SMA इन 1-to-1 करस्पॉन्डेंस विद OPT। Okay, so I hope that all the 4 sub questions are very well understood by each and everyone. Now question number 5 जो है, सब क्वेश्चन 5 जो है, ओके, बहुत सिंपल है, इसके अंदर भी 2 ट्राइंगल्स का चिपके हुए हैं लाइक दिस ओनली, इन्हीं में से एक टाइप का वो क्वेश्चन आपका है, ऑलराइट। तो आप क्या करोगे, इसका जो है आपको मैं होमवर्क देता हूं, ठीक है, ये आपको होमवर्क देता हूं मैं, ऑलराइट। और मुझे बताओ कमेंट करके कि ये जो ट्राइंगल जो है, ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है
ओके ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कौन से टेस्ट से हो रहे हैं एंड अंडर व्हाट करस्पॉन्डेंस। ओके चलो मुझे देखना है कि किन बच्चों का आंसर्स बराबर आता है। ऑलराइट तो ये हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है पूरा हो गया है प्रैक्टिस सेट 13.1 का। एंड आई गेस खाली एक ही क्वेश्चन इसके अंदर है मेरे ख्याल से, लेटेस्ट या खाली की क्वेश्चन इसके अंदर। तो हमारा प्रैक्टिस सेट जो है 13.2 यहाँ पे हमारा खत्म हो गया है, राइट ना। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 13.2 जो है, ये हमारा प्रैक्टिस सेट 13.2 जो है आज हमारा सॉरी 13.1 आई एम सॉरी 13.1 खत्म हो गया है। ओके तो अभी से मैं ऐसे ही करूँगा। ऑलराइट और बच्चों इसी के साथ मैं ऐसा वीडियोस बनाने वाला हूँ, होपफुली ऐसा लग रहा है मुझे, बिकॉज मैं अभी घर में से वीडियो बना रहा था पहले, तब मेरा बोर्ड वगैरह सब यहाँ पे था और सेटअप बनाया था मैंने, और अभी मैं शिफ्ट हो रहा हूँ दूसरे क्लासेस में। मैंने एक गालाभार लिया हुआ है, वहाँ पे मैं शिफ्ट हो रहा हूँ कल परसों। ऑलराइट सो और वहाँ पर वो हाईवे को टच मेरा क्लासेस है, इसके लिए वहाँ पर बहुत शोर शराबा है। ऑलरेडी तो सेटअप मेरा पूरा वहाँ पर है, इसलिए बड़ी मुश्किल से यहाँ पर मैं भी ऐसा बनाऊंगा। तो फर्क खाली इतना ही है कि जो वाइट बोर्ड आके सामने था, अभी ये वाइट पेपर होगा। ओके और मैं पूरा आपको डिटेल्स भी इधर भी एक्सप्लेन करूँगा। ऑलराइट तो बेसिकली एक्सप्लेनेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट रादर देन बोर्ड। ऑलराइट सो अगर कुछ भी आपको डाउट्स अगर होंगे, ओके कुछ कमेंट्स अगर आपके अगर होंगे तो प्लीज़ डू लेट मी नो ओके इन द कमेंट सेक्शन। और मैं आपके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार करता हूँ बेसब्री से। जब भी आप कुछ थैंक यू बोलते हो या कुछ अप्रिशिएट करते हो तो मैं मोटिवेट होता हूँ उससे। ओके और मुझे एक जज्बा मिलता है, ओके एक एंथुजियाज्म मिलता है मुझे उससे। ऑलराइट सो आई एम डेस्परेटली वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। ऑलराइट और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों कि आपको पढ़ाई करना है, करेक्ट ना। अगर आपको मेरा मेहनत पसंद आ रही है, अगर यू आर लाइकिंग, इफ़ यू आर लविंग माई वे ऑफ टीचिंग टू यू, okay, and if you think that I am getting successful in putting the subject in front of you and making you fall in love with the subject, okay, it's a humble request to please do like, share and subscribe my channel. Okay, so chalo that's all for now. abhi video bada ho raha hai bachcho. All right, so do take care, okay, and stay blessed. See you soon in my next video. Till then, bye bye.